Hey guys, hello and a very warm welcome back to my channel. So as promised, video is here for all of you guys on the topic of complete static geography, and in this lecture I'll be covering up the complete syllabus, and this lecture is for SSC, railways, and your banking exams, okay, and your other exams, all the other exams where these kind of questions are asked. So I'll be covering up the static part from the geography section as promised by me. So if you are new to this channel, so you can consider subscribing this channel after you watch the video completely. If you like it, then you can like the channel. It gives us motivation to bring more videos for you guys. Okay, so without any further ado, let's begin. Okay, so first of all, I'll be discussing a very important topic, and the topic is from the minerals. Okay, so when I'm talking about the minerals, so in the minerals what is happening is that I'll be talking about the minerals, that is the ore forms where the ores are found, and I'll be also talking about the petroleum and other ores and other things like diamonds, etc. Diamond, gold, etc. Everything would be covered in this one. This is the first topic of this lecture series. Not a series, but I'm going to cover whole in the one video. Okay, so you don't have to worry about it. So now beginning with the minerals part, first of all I'll be picking up the topic of petroleum. Okay, so when I'm talking about the petroleum, so in the world the highest reserves is in Venezuela. So this is a point you need to note. Highest reserves is in Venezuela. Okay, and the highest, you can say, the production is in Russia. Okay, then this is the first point you need to understand. Second point is in India, where is the highest highest amount is in Mumbai high area. Okay, this is first highest. Second highest is in Gujarat area. Third highest is in Assam, and the list goes on. अभी सबसे ज़्यादा most recently में, if you can see that in news as well, so it was found in Rajasthan in the Balmer region. Okay, so this you can remember. Okay, so ये मैंने इस तरीके से बना दिया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सा है जो आपको पता होना चाहिए. थर्ड पॉइंट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी. तो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? यह है जामनगर में. जामनगर सबको पता है कहाँ है? ठीक है, जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में, सबको पता है. यहाँ लिख भी देती हूँ अगर नहीं भी पता आप लोगों को, तो गुजरात में जामनगर. ठीक है, उसके बाद आपको जो पढ़ना है ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है दिग्बोई रीजन में. दिग्बोई रीजन कहाँ है? असम में. यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है. ठीक है, ओल्डेस्ट ये है ऑल ओवर एशिया की सबसे ओल्डेस्ट है. ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो. ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई बात पेट्रोलियम की. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कॉपर की. ठीक है, अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ तो सबसे पहले वर्ल्ड में कॉपर कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा कॉपर वर्ल्ड में किधर है? तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रिजर्व में है, रिजर्व्स कहाँ पर है? रिजर्व सबसे ज़्यादा है चिले में. ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है? सॉरी, मैंने प्रोडक्शन. ओके, तो प्रोडक्शन भी कहाँ पर है? प्रोडक्शन भी चिले में ही सबसे ज़्यादा है. तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स भी यहीं पे हैं और ये प्रोडक्शन भी अपना खुद का कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का. ठीक है, इंडिया की बात कर लेते हैं हम लोग. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. इंडिया में कहाँ पर कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा कॉपर इंडिया में आपको मिलेगा वन एंड ओनली मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्व्स हैं इंडिया में.
ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉपर कहाँ मिलता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कॉपर है वो आपको राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी राजस्थान में मिलती है और राजस्थान में ही जो है एक ओल्डेस्ट कॉपर माइन भी है। तो ओल्डेस्ट कॉपर माइन राजस्थान में जो जगह का नाम है खेतरी, खेतरी में जो है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कॉपर माइन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या चीज़ कवर करनी है? आप लोगों को कवर करनी है एक और जगह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बालघाट एरिया में है। बालघाट एरिया में जगह का नाम है मलांज खंड एरिया में जो है बालघाट में, एमपी में बालघाट में मलांज खंड एरिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉपर माइन है, लार्जेस्ट कॉपर माइन ऑफ एशिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एमपी में जो है आपका लार्जेस्ट माइन भी है जिसका नाम है मलांज खंड and just my tongue twister is going on. And in Madhya Pradesh itself there is this largest quantities of copper, and the best quality of copper is in Rajasthan, and there is the oldest copper mine, that is Khetri. So this you can also remember, okay. Fourth point to be understood, fourth point is nothing you need to understand. Our copper is completed here only. Now I'll just come to the topic of our favorite diamond. Okay, so when I'm talking about the diamond, so the highest reserves of diamond in the world is in Russia, okay, it is in Russia. Secondly, in India, okay, in the world you need to understand one more thing, that there is the largest diamond market which is in Kimberley in South Africa, okay. So this you can also remember, largest diamond market, okay. Then in India it is in Panna of Madhya Pradesh. You would have heard about Panna Tiger Reserve or Panna Reserve. So Panna of Madhya Pradesh is famous for diamond, okay. Only in Panna it is found. Then एक और जगह है किम्बरले के अलावा, यहीं लिख देती हूँ, Antwerp. I'm writing it again, ANTWERP, Antwerp. एंटवर्प जो जगह है कहाँ पर है? ये जगह है बेल्जियम में, एंड ये भी है एक इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड मार्केट्स, ओके। वन ऑफ द, ये दोनों वन ऑफ द है, ठीक है, लार्जेस्ट डायमंड मार्केट्स, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों को क्या समझ रहा है? ये सब आपका डायमंड का था। अब हम आ जाते हैं गोल्ड पर, अगेन आवर फेवरेट, ओके, गोल्ड। तो गोल्ड के जो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं वो यूएसए में है, चाइना में है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पर है? इंडिया में ही आपको मिलेगा कोलर एंड हट्टी माइंस, कोलर और हट्टी माइंस में आपको मिलेगा। कोलर और हट्टी माइंस कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटका में है, ठीक है। और क्या समझ रहा है आपको? एक यहाँ लिख देती हूँ, एक साउथ अफ्रीका में एक सिटी है, सिटी का नाम है जोहान्सबर्ग। आई एम राइटिंग द स्पेलिंग, NNESBERG, जोहान्सबर्ग इज़ इन साउथ अफ्रीका। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट
गोल्डन, इसको हम लोग गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है, गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिल्वर की भी बात यहीं कर लेते हैं। सिल्वर जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमको मिलता है मैक्सिको में, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा मिलता है, पेरू में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, पेरू और मैक्सिको, तो आप देख सकते हैं सदर्न अमेरिका के साइड पे, ठीक है। सेकेंडली इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है जवार इन राजस्थान, जवार इन राजस्थान, जहाँ पर ये मिलता है। और राजस्थान में जवार किधर है, ये आपका उदयपुर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई सिल्वर की, गोल्ड की, डायमंड की, मिनरल्स में पेट्रोलियम की, और हमने कॉपर की भी बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा आयरन ओर, ठीक है। क्या है टॉपिक? आयरन। अब हम जब आयरन की बात करते हैं तो आयरन में जो वर्ल्ड में सबसे फेमस है वो है ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है इसके पास, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है यहाँ पे चाइना में आयरन का, ठीक है। सेकेंडली इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोल माइंस बहुत जगह पे मिलती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया आपका, कर्नाटका हो गया आपका, झारखंड हो गया, ठीक है। तो इन सारे एरियाज़ में मिलती है। तो मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट माइंस, इम्पॉर्टेंट माइंस का एक सेक्शन है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट माइंस लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी है। फर्स्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटाइट फॉर्म होता है आयरन का, मैग्नेटाइट फॉर्म का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन है कर्नाटका में, एंड ये सबसे फाइनेस्ट होता है, ये फाइनेस्ट होता है ऑफ द आयरन। एक आयरन ओर पे मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बना रखा है, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक आयरन ओर के बारे में मैंने बना रखा है, तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ आयरन ओर डिस्क्राइब किया है। तो एक मतलब कितने का, आई थिंक 15-20 सेकेंड का होता है, तो उसमें मैंने पूरे टाइप्स ऑफ ओर्स बता रखे हैं अलॉन्ग विद द परसेंटेज ऑफ आयरन, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटाइट ये सबसे फाइनेस्ट होता है, और इसकी जो माइंस है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में मिलेंगी, ठीक है। सेकेंडली आपके पास, हमारे पास होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट वेराइटी, हेमेटाइट वेराइटी का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड का 2/3 हमें इंडिया में ही मिलेगा, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बहुत सारी जगहों में, तो मैं अभी एक का नाम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। और ये तो आपका वो हो गया। अभी आप थर्ड पे लिख लो कि आपको जो डिफरेंट माइंस है, माइंस जिसमें कि अलग अलग टाइप के मिलते हैं। फर्स्ट पे आप लिख सकते हो बस्तर माइन, बस्तर, बस्तर आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सेकेंड में आप लिख सकते हो दल्ली रायहारा, दल्ली रायहारा, दल्ली रायहारा कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका, नहीं ये भी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद थर्ड कर्नाटका में है आपके पास केमानगुंडी, कर्नाटका। फोर्थ में आपका नावमुंडी, ये भी नावमुंडी जो है ये आपका झारखंड में है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट माइंस थी आयरन की, ठीक है। आयरन के बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो कि है टिन, ठीक है। टिन, तो टिन की बात करें तो सबसे पहली बात तो बिगेस्ट जो वर्ल्ड में है, बिगेस्ट वो है हमारा चाइना में, ठीक है। चाइना में वर्ल्ड का बिगेस्ट है, और ये प्रोडक्शन में है, ठीक है। और इसका जो वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट रिज़र्व है वो इंडिया में है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया है, तो सबसे ज़्यादा रिज़र्व इसका वर्ल्ड में इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए
अच्छा, आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी, जैसे इसको एक बार क्लियर कर लो, मैंने एक गड़बड़ कर दी। इसका इंडिया में नहीं है सबसे ज़्यादा रिजर्व, इसका चाइना में ही है। दोनों चीज़ें चाइना में रहती है इसकी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। ठीक है, इसका दोनों चीज़ें चाइना में ही रहेगा, प्रोडक्शन प्लस रिजर्व भी चाइना में ही है। ठीक है, टिन का। और इंडिया में किधर मिलता है? इंडिया में टिन आपको कहाँ पे मिलेगा सबसे ज़्यादा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अभी मैं बात कर लेती हूँ माइका की। माइका जो है उसका इंडिया में ज़्यादा है। ठीक है, उसमें चाइना में यहाँ पे इसका प्रोडक्शन है, लेकिन ओर फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में इसका रिजर्व है। ठीक है, फेमस फेमस माइन ऑफ इंडिया इज़ कोडरमा माइन। ठीक है, कोडरमा माइन है इंडिया की, वो सबसे ज़्यादा फेमस है माइका के लिए। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना सॉरी इंडिया में इसका जो है सबसे ज़्यादा रिजर्व रहता है। ठीक है, वी हैवंट डिस्कस कोल येट, तो मैं यहीं पे कोल डिस्कस कर लेती हूँ। कोल, ठीक है, तो अगर मैं कोल की बात करती हूँ तो कोल का सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो वर्ल्ड में रशिया में रहता है। रशिया में इसके पास रिजर्व रहता है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे टाइप के कोल्स होते हैं। कोल्स के टाइप भी मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बना रखा है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो, नहीं तो अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी जल्दी से बता देती हूँ। एक तो होता है एंथ्रासाइट, एक एंथ्रासाइट फॉर्म होता है जो कि सबसे बेस्ट होता है। तो मैं फर्स्ट पे इसको रख रही हूँ, सही बेस्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट रखती हूँ, फर्स्ट पे इसको रख रही हूँ। इसमें आपका 80 to 95% आपको कार्बन कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बिटूमिनस। ठीक है, बिटूमिनस में आपको सेकंड फाइनेस्ट होता है, तो 60 to 80% कार्बन कंटेंट यहाँ पे मिलता है। थर्ड में आता है हमारे पास लिग्नाइट, और फोर्थ में आता है हमारे पास हीट। इन दोनों में बहुत ही कम रहता है, इसमें 40 से 60% के बीच में रहता है, और इसमें रहता है अराउंड लेस देन 40%। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ओके, अच्छा इंडिया में क्या रहता है? देखो कोल का हिसाब, इंडिया में कोल जो होता है, तो सबसे बेस्ट वैरायटी जो है हमारे पास एंथ्रासाइट वाला ओनली एक ही जगह मिलता है इंडिया में, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में एक ही जगह मिलता है एंथ्रासाइट, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी हमारे पास पीट के रिजर्व्स, पीट और आपका लिग्नाइट हो गया, बिटूमिनस हो गया, ये सारे अदर रिजर्व्स में आ जाते हैं। तो अदर कहाँ मिल जाते हैं बचे हुए? झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं, उसके बाद है उड़ीसा में सेकेंड नंबर पे, और फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मैं इम्पॉर्टेंट कोल माइंस और लिख देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट कोल माइंस कौन से, बिकॉज ये जो इम्पॉर्टेंट कोल माइंस का क्वेश्चन है ये हमेशा बनेगा पेपर में, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कोल माइंस हम लोग इधर ही लिख लेते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट कोल माइंस। ठीक है, फर्स्ट पे आती है आपकी रानीगंज, सेकंड पे आती है, ये ओल्डेस्ट इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद है आपकी झारिया माइंस। अच्छा, ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और झारिया माइंस जो है ये झारखंड में है। तलचार उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली इन मध्य प्रदेश। सिक्स्थ इज सोनभद्रा,
सोनभद्रा माइंस विच इज़ इन यूपी, रिहान डैम के पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट माइंस हैं कोल की, जो कि आपको याद होनी चाहिए। 5-6 माइंस है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो रानी जो होता है, रानी वेस्ट बंगाल में रहती है, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज़ काइंड ऑफ अ फिगर ऑन द मैप, जो कि आपको एक डांसिंग गर्ल की तरह दिखती है। तो आप रानीगंज से याद कर सकते हो कि ओल्डेस्ट वेस्ट बंगाल में होगी, ठीक है। झारिया, JH फॉर झारिया, JH फॉर झारखंड, है तो ईजी है, ठीक है। तालचार इज इन उड़ीसा, कोलवार ऐसा करके कुछ बना लो, सिंगरौली मध्य प्रदेश है तो पता ही है, ठीक है। सोनभद्रा, ठीक है, सोनभद्रा इज इन यूपी। तो आपको कुछ ऐसे बना के याद करने पड़ेंगे, कुछ निमोनिक्स बना लो, जो भी आपको सही लगे वो बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स talk about the uranium. So when I'm talking about uranium, so the production of uranium is in Kazakhstan, okay, and the reserves are in Australia, okay. some important mines of uranium includes the, in India, of course, in India uranium mine includes Jadugoda, however you want to spell it, it is in Jharkhand, okay. Then we have Domiacet, Domiacet, Meghalaya. Please don't go on my pronunciation because you can spell it out in your own words. Tamalapala in Andhra Pradesh. So these are certain important uranium mines that you need to know about. Okay, now let me talk about the next important element, that is bauxite. Okay, so when I'm talking about bauxite, so again largest is in Australia. Okay, largest is in Australia. In India, it is mostly in Odisha and Jharkhand. Okay. If I talk about thorium, so thorium is important because it is found in the it is found in India in the monazite soil, and monazite soil is found in only and only in Kerala, okay, Western Ghats Kerala region. So we can say that in India largest is in Kerala, okay, in the monazite soil or sand, okay. And reserves, if I'm talking about reserves, largest reserves are in India. So it is a beautiful thing that India have this reserve, and this holds much potential for us in order to export it, okay. And the production part is in Australia, so we can export large amounts of this in order to gain the gain the economic values, okay. Now let me tell you one thing. One is, okay, we have done bauxite, great. I think all of it is done now, okay. Now I'm going to be talking about what should we talk about now? Let us talk about lakes, okay. Some important lakes. So static में ही let's talk about lakes. So when I'm talking about lakes, the important static points here, first and most important, Chilika Lake. Okay, so what about the Chilika Lake?
सो चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। कहाँ पर है चिलिका लेक? आई थिंक सबको ही पता है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, कितना है ये? 63 किलोमीटर है लेंथ में। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। और रामसर साइट्स आपको पता है, रामसर हम पढ़ लेंगे बाद में। रामसर का मैं एक पीडीएफ या तो अपलोड कर दूँगी, ठीक है, या फिर जैसे भी होगा आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट, नॉट एन इशू। ओके, सेकेंड इज हमने एक और लेक है, सेकेंड लिख लो यहाँ पे, वेम्बानंद। वेम्बानंद लेक जो है ये कहाँ पर है? ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये लार्जेस्ट है, ये याद रखना है। लॉन्गेस्ट लेक है, कितना है? 96 किलोमीटर की है। ठीक है, और एक बोट रेस होती है यहाँ पर। यहाँ पे है वेम्बलन लेक के पास है एक वेलिंगटन आइसलैंड। इसमें जो होती है ना, रेस होती है नेहरू ट्रॉफी के लिए, नेहरू ट्रॉफी जो कि बोट रेसिंग के लिए होती है, नेहरू ट्रॉफी के लिए रेस होती है यहाँ पे। और ये कहाँ पर है? ये केरला में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेक हम लोग बात कर लेते हैं, लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक में क्या इम्पोर्टेंट है? लोकटक लेक जो है ये हम सबको पता है कहाँ पर है, मणिपुर में है। और ये लार्जेस्ट एंड ओनली फ्रेश वाटर लेक है, ओनली फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, एंड इसका जो होता है, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है, दैट इज़ केबुल लमजाओ पार्क, नेशनल पार्क, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लोटिंग पार्क। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लोटिंग पार्क। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फोर्थ इज़ द सांभर लेक। सांभर लेक के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सांभर लेक जो होता है ये सबसे सॉल्टीएस्ट लेक है इंडिया का। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं नवंबर दिसंबर के अराउंड। ठीक है, नवंबर टू फेब्रवरी, एक्चुअली नॉट नवंबर टू फेब्रवरी, यहाँ पे क्या आती है? माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। ठीक है, आपको और जो पढ़ना है वो है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है ये कहाँ पर है? पुलिकट लेक है आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये आपकी सेकंड सॉल्टीएस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास में श्री हरिकोटा आइलैंड भी है, जो कि आपके सैटेलाइट लॉन्च के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, सतीश धवन स्पेस सेंटर भी यही है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा वुल्लर लेक। वुल्लर लेक एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, झेलम रिवर इसके पास से ही क्रॉस करती है। ठीक है, झेलम के पास है ये, बल्कि झेलम के रास्ते में ही ऐसे लेक बनती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, टू बी प्रिसाइज आप यहाँ पे लिख लो, श्रीनगर में है ये, श्रीनगर में है। ठीक है, और ये क्या करती है? झेलम के फ्लो को जो है वो कंट्रोल करती है, बिकॉज जैसे बीच में होती है ये। ठीक है, उसके बाद एक और लिख लो, लोनार लेक। लोनार लेक में क्या है? लोनार लेक में क्या है? लोनार लेक सबसे पहले तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये किससे फॉर्म हुई है? ये एक मीटियोरिटिक लेक है।
मीटियोरिटिक लेक क्या होता है, ये एक मीटियोर आया था, ऐसे धरती पे मीटियोर आया था, तो जब वो जहाँ गिरा तो वहाँ पे ऐसे पूरा एक गड्ढा हो गया और उसके अंदर ऐसे पानी फिल हो गया, ठीक है, तो वो होती है मीटियोरोटिक लेक, ठीक है। तो मीटियोरिटिक लेक है ये। और एक आप एक चीज़ और लिख लो, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। क्या है ये? एक आर्टिफिशियल लेक है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा इंडिया की लेक्स मैंने करा दी आपको, ये लेक्स मैंने आपको सारी करा दी है इंडिया की। तो आप लोगों ने, आई होप ये आप लोगों ने नोट साथ साथ बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को एक बार वर्ल्ड की लेक्स भी करा दूँ, ठीक है। तो उससे क्या होएगा, हमारा सारा टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं वर्ल्ड की लेक्स, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड की लेक्स की बात कर रही हूँ तो सबसे पहला जो है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है लेक सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर। आपको नाम से पता है, नहीं भी पता है तो यूएसए में है ये, ठीक है। बेसिकली बॉर्डर पड़ता है कनाडा और यूएस बॉर्डर पे, ठीक है। लिख भी दे रही हूँ मैं यहाँ पे, कनाडा और यूएस बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है हमारे पास? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज़ अ लेक, ओके। कहाँ पर है ये? यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगी वर्ल्ड का, हम पूरा मैप उसमें स्टडी कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट लेक किधर है? लेक टिटी काका इज़ द हाईएस्ट लेक, और रैदर इट इज़ CACA, तो आप इसको चेंज कर लो एक बार, KAKA नहीं है, CACA है, ठीक है। लेक टिटी काका, ठीक है, लेक टिटी काका। तो ये कहाँ पर है? ये आपकी बोलीविया और पेरू, ठीक है। डीपेस्ट लेक कहाँ है? लेक बैकाल किधर है? रशिया, ठीक है। अच्छा, और आपको क्या पढ़ना है? और आपको पढ़ना है सॉल्टिएस्ट लेक भी लिख लो, एक सॉल्टिएस्ट लेक। सॉल्टिएस्ट लेक है आपकी लेक वॉन, और ये कहाँ पर है? ये टर्की में है। इतना क्लियर हो गया सबको कि कौन सी लेक्स है? सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, पूरी स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो या वापस से विजिट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया है, तो आई एंड दिस वीडियो हेयर। एंड मैं भी आपको वर्ल्ड के ऊपर एक वीडियो ला दूँगी, उसकी टेंशन नहीं है, बिकॉज वो मेरे बिल्कुल दिमाग में है एंड टू डू लिस्ट में है, तो वो होगा ही होगा, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड मैप हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होता है, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आई होप यू enjoyed द वीडियो, सो इफ़ यू डिड please subscribe to this channel and leave a like so that I could know that you guys like the video. It gives us good motivation to make more and more videos for you guys and give more and more free content. So thank you so much guys, have a very nice day, stay safe, stay healthy, bye.